We have already seen the autonomic nervous system and we have seen this part. So we have seen in the previous sessions what do you mean by sympathomimetic drugs. So there are four terms. First one is a sympathomimetic drug. Second term there is a sympatholytic drug. Third term is known as a parasympathomimetics and fourth one is known as a parasympatholytic. So what do you mean by sympathomimetics? Sympathomimetics, these are the drugs which will copy, which will mimic the responses which are produced after the stimulation of sympathetic nerves. Basically, they will produce similar actions as that is produced by noradrenaline. They are known as sympathomimetics. So drugs which copy the responses produced by noradrenaline, they are known as sympathomimetics. Now, drugs which blocks the actions of noradrenaline. They are known as sympatholytics. So sympathomimetics, sympatholytics. So in the similar way, parasympathomimetics. So what do you mean by parasympathomimetics? So these are the drugs or agents copy or which mimic the responses which are produced after stimulation of parasympathetic nerve, or they will they will produce actions like acetylcholine. So those which copy the actions of noradrenaline, they are known as sympathomimetics. And those drugs which blocks the actions of noradrenaline, they are known as sympatholytics. So sympathomimetics, they are also known as adrenergic drugs. Sympathomimetics are also known as adrenergic drugs. Okay. Then okay. Then parasympathomimetics means these drugs they will copy the action of acetylcholine, or they will produce actions similar to actions obtained after the stimulation of parasympathetic nerve ending. And they are also known as cholinergic drugs. And anticholinergics or parasympatholytics. They are the same terms. There are four terms you must understand. So we have seen the nervous system, its part. We have seen the transmitter, neurotransmitter. We have seen the what is meant by what is the action of adrenaline, noradrenaline on the your body. Okay, when you are under influence of sympathetic nervous system, so sympathy is there. Okay, so when you need sympathy, when you are in a trouble, when you are in a threat condition, at that time you need a sympathy. Your body will try to change certain functions, it will try to change your physiology. So we have already seen that is known as a sympathetic nervous system will prepare you for either fight or flight. Okay, so either you have to fight with that threat or you have to run away from that threat. For this you need a different changes in your body. That change will be brought about by the release of noradrenaline from sympathetic nerve endings, and it has its own receptor known as alpha and beta receptor. So we have seen the subtypes of alpha, we have seen the subtypes of beta. So all these receptors they act on a different organ, they produces the different kind of actions. We have already seen these actions. Okay, we have also seen the actions of your these are the actions of adrenergic system, these are the actions of cholinergic system. We have seen this also. What is the what is a pre-synaptic neuron and what is a post-synaptic neuron? What are the neurotransmitter for pre-synaptic neuron? In case of adrenergic system, what are the neurotransmitter for pre as well as post ganglionic nerve fiber for the cholinergic system? So just remember, for the cholinergic system or for the parasympathomimetic system or parasympathetic system, pre as well as post ganglionic fiber consist of a neurotransmitter known as acetylcholine. And for adrenergic system, so pre-ganglionic is always acetylcholine. Question आता है इसके ऊपर. Pre-ganglionic is always acetylcholine and post-ganglionic is majorly is a noradrenaline. But at some places, some organs, so there may be acetylcholine. For example, in case of sweat gland, there may be adrenaline. For example, in case of adrenal gland, and there might be dopamine. There might be dopamine in case of your renal and splenic nerve or splenic area. We have already seen the different neurotransmitters. Now we have already seen the synthesis, storage, and release of acetylcholine. I am not going to repeat it. We have seen this in a diagrammatic way also. We have seen the different types of receptor for acetylcholine. So cholinergic receptor and their distribution. This part I am going to explain you again when we'll see cholinergic drugs. Now we have already seen this also. Synthesis, storage, and release of catecholamines neurotransmitter. Synthesis,
storage, release of your dopamine, noradrenaline, and adrenaline. Right? We have seen their metabolism also. We have seen this as well as we have seen their metabolism. We have also seen the classification. We have seen in the yesterday's lecture we have completed this classification based upon the therapeutic point of view. So some drugs are used for the increasing the blood pressure like noradrenaline, leptin, metraminol. Some drugs they are used for their only inotropic action. So inotropic means these are the drugs which increases the force of contraction of myocardium. तो मायोकार्डियम का फोर्स कॉन्ट्रैक्शन जो बढ़ता है उसको इनोट्रोपिक ड्रग बोलते हैं, है ना. जो हार्ट रेट बढ़ाता है उसको क्रोनोट्रोपिक बोलते हैं, है ना. अगर बढ़ाता है तो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक, अगर कम करता है मतलब क्या है. इनोट्रोपिक मीन्स व्हाट. इट इज द एक्शन ऑफ ड्रग, इट इज द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ मायोकार्डियम. ओके, मायोकार्डियल का कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसके ऊपर जो एक्शन है उसको बोलते हैं इनोट्रोपिक एक्शन. अभी पॉजिटिव मतलब क्या कि अगर बढ़ता है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव इनोट्रोपिक. मींस व्हाट. सो अ ड्रग is known as a positive inotropic drug when it will increase the force of contraction, right? So for example dopamine, dopamine, isoprenylin we have seen. Now what do you mean by negative inotropic drug? So negative means that will decrease the force of contraction. Okay, that will decrease the force of contraction, that is known as a negative inotropic. Okay, what is meant by chronotropic? So any drug if that affect the heart rate, excitability, heart rate, so that is known as a chronotropic effect on the heart. So positive chronotropic drug means what? So those drug which increase the heart rate known as a positive chronotropic. Now what is meant by negative chronotropic? So those drug which decreases the heart rate known as a negative chronotropic. And there is one more action on heart known as a dromotropic. 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 So dromotropic effect means what? So effect of drug on the conduction velocity on the heart. Conduction system जो होता है उसके ऊपर जो एक्शन है उसको बोलेंगे ड्रोमोट्रोपिक. एंड और एक होता है लूसीट्रोपिक एक्शन. तो लूसीट्रोपिक मतलब क्या है ना, यहाँ पे आपको आर यू गेटिंग माय वॉइस प्रॉपर्ली. ये कंसेप्ट आपको ना किसी ने बोला होगा ना कोई समझाएगा. आई नो 100%. लिख के देता हूँ मैं करेंटली. सो रिमेंबर आइनोट्रोपिक मीन्स व्हाट. एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द contractility of myocardium of your heart. Okay, so if it is increasing known as a positive inotropic, if it is decreasing known as a negative inotropic. What is meant by chronotropic? So chronotropic means what? Action of drug on heart rate. Heart rate. So if drug is increasing the heart rate known as a positive chronotropic, if it is decreasing known as a negative chronotropic. Now third one is known as a dromotropic. Dromotropic effect means what? So effect of drug on the conduction system of your heart. So अगर कोई ड्रग कंडक्शन बढ़ाता है हार्ट में, दैट इज नोन एज अ पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट or positive dromotropic drug. If any drug decreases the conduction velocity in the heart, known as a negative dromotropic effect. और एक लास्ट एक टर्म होता है लूसीट्रोपिक. So what do you mean by lucitropic? So these are the drug which, okay, lucitropic means it is the action of drug on the heart, particularly on the diastolic function of heart. जो ड्रग ज्यादा हार्ट को रिलैक्स करता है उसको बोलेंगे पॉजिटिव लूसीट्रोपिक ड्रग. जो ड्रग कम रिलैक्स करता है उसको बोलेंगे नेगेटिव लूसीट्रोपिक ड्रग. देयर आर फोर एक्शंस: इनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक एंड लूसीट्रोपिक. यू नो, तो बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होता है, राइट. Now we have seen the central stimulant means drug which are used for its central stimulation action. So methylphenidate, amphetamine, dextroamphetamine. Adrenergic drugs or sympathomimetic drug which are used as only muscle relaxant. ये muscle relaxant बोल के use होती है. So in that you have two categories: non-selective beta stimulant. So beta agonist, non-selective beta agonist like adrenaline, isoprenylin, isotretinoin. Selective beta 2 agonist or stimulant salbutamol, terbutaline. ये सब ये जो है ना ये इसमें इसको होते हैं अस्थमा में. Now drug used in the allergic condition again adrenaline and epinephrine. So remember adrenaline is a drug of choice in the anaphylactic reaction and allergic reaction. एड्रेनालिन क्या होता है? ड्रग ऑफ चॉइस होता है. ये बाद में आएगा आपको, बट अभी ये याद रखो. लोकल वैसोकंस्ट्रिक्टर ड्रग विच आर एड्रेनर्जिक ड्रग विच आर यूज्ड फॉर देयर लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन और वैसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट. सो एड्रेनालिन, सो यू नो दैट एड्रेनालिन अपन ने देखा है ब्लड में व्हेन वी वाज डिस्कसिंग अबाउट द ब्लड. सो लोकल स्टिक्टिक इन दैट यू हैव एग्जांपल ऑफ एड्रेनालिन. व्हाई? because it causes the local vasoconstriction and it will accelerate the blood clotting process. But its endogenous effect is different. उसका अंदर से बॉडी से इफेक्ट क्या है कि वो
जो प्लेटलेट है उसको इनहिबिट करता है. सो एड्रेनालिन इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन. ये क्या रखना है. So it has a bipolar effect on the blood coagulation. By its vasoconstrictive effect, it increases the clotting. Okay, but by its antiplatelet effect, increases the bleeding. ठीक है, तो इसका bleeding as adverse effect होता है. Nefazolin, phenylephrine, xylomethazolin, they are known as a they are known as a vasoconstrictor. They are used in the treatment of your cold and flu. Okay? Then appetite suppressant or anorectic drug, fenfluramine, phentermine, they are the appetite suppressant. So obviously इसका यूज क्या होगा. ये appetite को कम करते हैं, आपका ये भूख को कम करते हैं, है ना. तो किस में यूज करेंगे. इसका यूज ऑब्वियसली इसमें ना भुक्कड़ लोगों में. जो भुक्कड़ लोग होते हैं ना बहुत ही ज्यादा खाते रहते और खाद बनाते रहते. इतना सारा खाएंगे कि मॉर्निंग में सुबह 1 2 3 किलो तक वो सब फर्टिलाइजर बनाते हैं. ठीक है, तो जो भुक्कड़ लोग होते हैं मतलब जिनको ओबेसिटी होता है, जो ओबेस पेशेंट है उनमें ये एनोरेक्टिक ड्रग यूज करेंगे जो एपेटाइट सप्रेसेंट बोलते हैं. We have seen this classification. After that we have seen again the classification. After that we have seen the receptors. Okay, so predominantly we have seen the receptors. Again, distribution of these receptors. So all these receptors are nothing but the G protein coupled receptor. Some of them are stimulatory receptor, some of them are inhibitory. So basically alpha 1 is a stimulatory in nature, alpha 2 is inhibitory in nature. So beta 1 is also stimulatory in nature, beta 2 is inhibitory in nature, and beta 3 is again stimulatory in nature. Okay, तो ये एक सिंपली याद रखना है आपको ये फंडा. सो मेडुला एब्लॉन्गेटा जो होता है ब्रेन का, तो उसमें जो होता है अल्फा 2 रिसेप्टर होता है. उसका काम क्या है. सो इट विल डिक्रीज द सिंपैथेटिक आउटफ्लो. सिंपल, सिंपैथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज करेगा मतलब क्या करेगा, ये नॉर एड्रेनलिन का रिलीज कम होने देगा, ज्यादा होने नहीं देगा. ये नॉर एड्रेनलिन का रिलीज कम करेगा. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ प्री-सिनेप्टिक अल्फा 2 receptor, which is inhibitory in nature, and it will decrease the release of noradrenaline. And that's why central alpha 2 agonist is one of the category, is one of the class used in the hypertension. Central alpha 2 agonist क्यों बोलते हैं उनको, क्योंकि सेंट्रल प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर जो होता है वो क्या करता है कि आपका नॉर एड्रेनलिन का जो आउटफ्लो है, सो इट विल डिक्रीज द सिंपैथेटिक आउटफ्लो, एंड दैट्स हाउ इट विल डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, है ना. सो दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर एंड to decrease the heart rate. Okay, then again your blood vessel has a alpha 1 receptor which causes the constriction of blood vessel. So alpha 1 क्या है, stimulatory in nature है, तो ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है. अभी देखो अल्फा 1 वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा मतलब कौन से, अल्फा 1 कहाँ पे होता है, ब्लड वेसल. मतलब सबको ब्लड वेसल क्या नहीं, कौन से ब्लड वेसल, पेरिफेरल ब्लड वेसल. अगर ये पेरिफेरल ब्लड वेसल में होता है तो वहां पे ही कंस्ट्रक्शन करेगा, वहां पे कंस्ट्रिक्शन करेगा तो क्या होगा, पेरिफेरल ब्लड वेसल का कंस्ट्रक्शन होने के बाद में क्या होगा, आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा. आपको मैंने यस्टरडे कल आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ब्लड प्रेशर. सो ब्लड प्रेशर इज नथिंग बट द कार्डियक आउटपुट इनटू peripheral resistance. So anything that will increase the cardiac output, that will increase the blood pressure, or any factor that will increase the cardiac that peripheral resistance will increase the blood pressure. So noradrenaline by increasing the peripheral resistance, by increasing the vasoconstriction, so increases the blood pressure. Now that's why alpha receptor blockers, so alpha blockers, they are used in the treatment of blood pressure. Okay, in the skin, in the pilometer muscle you have alpha 1 receptor which is stimulatory, it causes the contraction of that pilometer muscle. तो आपको जब भी आपको ऐसा कोई थ्रेट दिखेगा, है ना, जैसे आपको अचानक सामने से भालू आ गया है ना, तो आपके बाल है ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. रोंगटे खड़े होना मतलब क्या, आपके पूरे बाल खड़े हो जाएंगे शरीर में के, हाथ में के होंगे. So what happens, that is due to contraction of pilometer muscle. Okay, because under the influence of noradrenaline. Then again sweat gland also there is a slight secretion of sweat. रेडियल मसल ऑफ आइरिस, है ना, तो जो आपका आई होता है आइज पिपिल में ऐसे मसल होते हैं और यहाँ पे, सो दोज मसल्स व्हिच आर सराउंडेड बाय योर पिपिल नोन एज अ रेडियल मसल्स. यहाँ पे जो मसल है यहाँ पे इसको बोलेंगे रेडियल मसल. तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस रेडियल मसल, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो दे आर फिक्स्ड एट दिस साइड, ये साइड के ऊपर फिक्स हो. अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसका साइज जो है ना बड़ा होता है. So contraction of this radial muscles of or circular muscles of your pupil causes the mydriasis. Okay, in the male sex organ it causes ejaculation. We have seen yesterday. Now
प्रीडोमिनेटली बीटा रिसेप्टर कहाँ पे होता है? इन द हार्ट एंड किडनी एंड लंग्स, हार्ट किडनी एंड ब्रोंकाई. सो बीटा 1 इज प्रेजेंट ऑन द हार्ट एंड इट इज अ प्रीडोमिनेंट. अल्फा 1 भी होता है लेकिन डोमिनेंस किसका है? इसका है. वर्चस्व किसका है? बीटा 1 का. तो बीटा 1 का ही सब सुनता है हार्ट, अल्फा 1 का सुनता नहीं है. अल्फा 1 सिर्फ नाम के लिए है वहाँ. So beta 1 को सुनता है. तो beta 1 क्या है? Stimulatory in nature. So noradrenaline will act on a beta 1 receptor of heart, increases the heart rate. Heart rate को क्या बोलते हैं? Positive chronotropic effect. So increase heart rate मतलब positive chronotropic effect. अगर कोई ड्रग डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, उसको बोलेंगे नेगेटिव chronotropic effect. Okay. Force of contraction is also increased, no, also known as a positive inotropic effect. Right. So on the bronchi you have beta 2 receptor which is a inhibitory in nature. तो ये क्या करेगा? ब्रोंकियल स्मूथ मसल को रिलैक्स करेगा ताकि ब्रोंकियल एयरवे का जो एयरवे का डायमीटर है वो बढ़ जाएगा, है ना. आपको इजीली आप सांस ले सकते हो. तो ब्रोंकोडाइलेशन एंड दैट्स व्हाई देखो बीटा 1 क्या करता है? इंक्रीज हार्ट रेट, पॉजिटिव कॉन्ट्रोपिक एंड इंक्रीज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन. सो इन केस ऑफ इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, so there is either increase the peripheral resistance or increase the cardiac output. Cardiac output may be increased by different reason. Cardiac output का increase करने का reason ये कि if there is increased heart rate or increased force of contraction बढ़ गया है, heart rate बढ़ गया है, तो cardiac output बढ़ता है ना. एक reason. या फिर दूसरा रीजन होता है कि ब्लड वॉल्यूम. अगर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया आपकी बॉडी में, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया मतलब क्या? कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, है ना. सो ब्लड वॉल्यूम एंड दिस increased heart activity is responsible for the increased cardiac output and increased blood pressure. So that's why beta blockers, they are used in the blood pressure. So when we'll see the antihypertensive drug, at that time I will explain it. Okay. Then on bronchial smooth muscle, by acting on a beta 2 receptor noradrenaline, cause relaxation of bronchial smooth muscle and will increase the एयरवे, है ना. एयरवे का साइज बढ़ देगा, ब्रोंकस का साइज बढ़ देगा. राइट. एंड दैट्स व्हाई बीटा 2 agonists they are used in the asthma. Okay. Beta 2 agonists like salpeterol, terpentylene, है ना, they are used, theophylline, they are used in the asthma. Okay. Then skeletal blood vessel के ऊपर कौन सा है? Beta 2 receptor. So as I told you, beta 2 is a inhibitory in nature. So what it will cause dilation of blood vessel. So why dilation? क्यों करता है डायलेशन? बिकॉज देखो, आप जब कोई थ्रेड के अंदर होते हो तो आपको आइदर आपको फाइट करना है उससे या फिर वहां से भागना है. दोनों के लिए आपके स्केलेटल जो मसल है, जैसे आपको बाइसेप, ट्राइसेप, थाइस मसल, दे हैव टू वर्क अ लॉट. फॉर दैट दे नीड अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन. दैट्स व्हाई देयर इज अ vasodilation because of the beta 2 receptor. Okay. Then both alpha and beta receptor are present on the GIT. मैंने कल स्टडी आपको अच्छी तरीके से बोला था, जैसे मोटिलिटी कंट्रोल होता है इसका. ठीक है. सो स्मूथ मसल पे होता है अल्फा 2, बीटा 2. स्फिंक्टर्स के ऊपर होता है अल्फा रिसेप्टर. ठीक है. पैंक्रियाज में भी अल्फा 2, बीटा 2 रिसेप्टर होता है. और यूरिनरी ब्लैडर जो ट्राइगोन मसल, जो आपका डेट्रोसर मसल है, उसमें बीटा रिसेप्टर होता है दैट कॉजेज द रिलैक्सेशन. एंड जो स्फिंक्टर होता है ट्राइगोन, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन होता है, सो दैट यूरिन विल बी रिटेंशन, यूरिन will be retained over here. So जब आप टाइगर के साथ में लड़ रहे हो, जब आप भाग रहे हो, आपको यूरिन करने का ख्याल नहीं आएगा और ना ही सेंस आएगा, बिकॉज उस टाइम पे आपको मालूम है कि वो आप जो थ्रेड में हो, थ्रेड है आपके पीछे. आपने अगर ये सब करते बैठेगा, आप जान से जाओगे ना. आपके पीछे लगा है टाइगर. ठीक है. आपके पीछे लगा टाइगर और आप क्या कर रहे हो? वहां पे है ना, एक 2 मिनट के वॉशरूम के लिए वहां पे खड़े हो. टाइगर आके कर लेगा, काम कर जाएगा, आपको तो विकेट गिर जाएगा ना, आपका तो क्लीन बोल्ड हो जाएगा. तो उसकी वजह से आपको भगवान ने बड़ में सब दिया है कि अगर नॉर एड्रेनलिन रिलीज होता है, ये सब एक्शन होने ही होने. ठीक है. देन वी आर सीन ऑन द coronary blood vessel, abdominal blood vessel and pulmonary blood vessel. Pulmonary vessels you have alpha and beta 2 receptor. So alpha 1 and beta 2, principally alpha 1 and beta 2. So what happens? Alpha 1 causes the constriction and beta 2 causes the relaxation. On the adipose tissue or adipocytes, alpha 2 receptor causes the inhibition of lipolysis. Beta 3 receptor is there. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, which receptor is present in the adipose tissue? इसका आंसर है बीटा 3, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिपोलाइसिस. लिपिड्स का ब्रेकडाउन करेगा.
बीटा 3 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिपोलाइसिस, क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। रिसेप्टर बी, रिसेप्टर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, जीपैट 2023 का पेपर देख लो, क्वेश्चन है ऑलरेडी, अभी क्वेश्चन याद नहीं आ रहा मुझे, कभी कभी याद आता है कभी कभी भूल जाता हूँ। तो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। लीवर में होता है आपका अल्फा 1 बीटा 2, अल्फा 1 रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट? On the uterus, alpha 1 causes the stimulation or contraction of uterine muscle. Beta 2 receptor causes the inhibition, means dilation of your uterus muscle. Leukocyte RBC के ऊपर कौन सा है? बीटा 2 receptor. So it inhibits the chemotaxis and release of lysosomal enzyme. chemotaxis prevent करता है। chemotaxis मतलब क्या है? So, movement of neutrophils toward the infection और movement of neutrophils towards the inflammation, है ना? तो इन्फ्लेमेशन नहीं होने देगा नॉरएड्रेनालिन। ऑन द प्लेटलेट यू हैव अल्फा 2 रिसेप्टर एंड व्हिच इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन, है ना? ये प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होने देगा, एंड दैट्स व्हाई मैंने जो बोला था, बाय इट्स लोकल vasoconstrictor ability it increases the blood coagulation, but due to its antiplatelet action it causes the bleeding. So there is a dual action of noradrenaline on the blood coagulation. Okay? So that we have also seen this. So alpha 1 का agonist कौन है, antagonist कौन है ना? अल्फा 1 का agonist कौन है? इनलेप्रिन, मेथोक्सामाइन, मेट्रामिनॉल, मेपेंड्रामाइन। ट्रांसोसिन इंडोरामाइन क्या है? एंटागोनिस्ट है। लोकेशन कहाँ पे अल्फा 1 का? पोस्ट कहाँ पे? ब्लड वेसल, ग्लैंड्स, स्मूथ मसल। मैकेनिज्म कैसा है? So stimulation of alpha 1 by noradrenaline causes the alteration in the cellular calcium ion influx. कैल्शियम आयन का एंट्री होगा सेल में ही। ये अल्फा 1 स्टिमुलेशन होने के बाद में सेलुलर सेल में क्या होगा? कैल्शियम का एंट्री होगा और डिपोलराइजेशन होगा और बाद में उसका इफेक्ट, दैट्स व्हाई स्टिमुलेटरी। अल्फा 2 कहाँ पे होता है ना? अल्फा 2 रिसेप्टर। इसके एगोनिस्ट कौन है? क्लोनिडीन, अप्राक्लोनिडीन, मिथाइल डोपा एंड गुआनिफिसिन। तो आप देखो अप्राक्लोनिडीन क्या है? इट इज अ प्रोड्रग ऑफ क्लोनिडीन। मिथाइल डोपा, है ना? बोथ all these drugs they are known as central alpha 2 stimulant used in the hypertension। ये hypertension में यूज करते हैं। ये किस में यूज करते हैं? अल्फा 1 एगोनिस्ट ये यूज करते हैं आपके नजल डिकंजेशन, राइट? सो अल्फा 2 का एंटागोनिस्ट होता है यूएमबिन, है ना? देन लोकेटेड का होता है अल्फा 2 पोस्ट सिनेप्टिक लोकेशन है उसका, ब्लड वेसल्स में, ब्रेन में, टिश्यू में, नॉन सिनेप्टिक में, प्लेटलेट्स में होता है, ल्यूकोसाइट में होता है। तो स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा 2 causes the inhibition of adenylyl cyclase enzyme and further complication। तो ये इनहिबिटरी होता है, ये स्टिमुलेटरी होता है, ठीक है? और बीटा 1 रिसेप्टर मैंने बोला स्टिमुलेटरी होता है। सो इसके एगोनिस्ट कौन है? डोपामाइन, आइसोप्रोप्रानोल और आइसोप्रेनालिन। देन एंटागोनिस्ट होता है प्रोप्रानोल एंड ऑल द बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है? लोकेशन कहाँ पे होता है? पोस्ट सिनेप्टिक। किसमें होता है? हार्ट में होता है, अगेन किडनी में होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो हार्ट में क्या करेगा? हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। किडनी में क्या करेगा? किडनी में जाके वो एक्टिवेट कर देगा किसको? रास। रास मतलब क्या है ना? रास मतलब ये नहीं कि आपका मकर रास है, वृषभ रास है, सिंह रास है, वो रास नहीं। रास मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, उसको एक्टिवेट करेगा ये और वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। वो अपन ब्लड प्रेशर में देखेंगे बाकी वाला पार्ट। सो मैकेनिज्म एक्ट बाय स्टिमुलेशन बाय एडेनिल साइक्लेज। बीटा 2 रिसेप्टर जो होता है वो इनहिबिटरी इन नेचर होता है। उसका एगोनिस्ट कौन है? ऑर्सिफेनालिन, सल्पेटामोल, टर्पेटिलिन, आइसोटेरिन। देन एंटागोनिस्ट कौन है? नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, है ना? जैसे पिंडोलॉल, प्रोप्रानोल, ये है नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर मतलब सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, और दे आर आल्सो नोन एज कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। अपन वो सब देखेंगे बाद में व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। Now stimulation it okay, then location का आप बताया, अगेन पोस्ट साइनेटिक, नॉन साइनेटिक। पोस्ट साइनेटिक के ऊपर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट साइनेटिक कहाँ पे? आपके ब्रोंकियल स्मूथ मसल में। नॉन साइनेटिक मतलब इसमें लिम्फोसाइट्स में, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स मतलब वो वही W6। स्टिमुलेशन ऑफ एडेनिल साइक्लेज एंजाइम, yesterday we have seen this, ठीक है? We have seen the classification again, okay? We have seen this classification according to the mode of action. Adrenergic drug or sympathomimetic drugs, they are classified into different way according to the mechanism of action. How? So drug acting direct acting, okay, directly acting drugs मतलब वो directly acting है, कौन सा? एड्रेनालिन है, नॉर एड्रेनालिन है, डोपामाइन है। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग नॉर एड्रेनालिन। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? स्क्रीन दिसते आपला?
So direct acting these three. Okay, isoprenyline, noradrenaline, dopamine, and adrenaline. Indirectly acting tyramine, amphetamine. Tyramine and amphetamine. So tyramine is a precursor for noradrenaline. Then mixed acting ephedrine and metramidone. According to the chemical nature, उनका chemical nature क्या है? कैटाकोल न्यूक्लियस है नहीं है? According to that, catecholamines वही चार, adrenaline, noradrenaline, dopamine, isoprenyline, dopamine. नॉन कैटेकोलामाइंस में आएगा आपका इपेड्रिन, एम्फेटामाइन, टायरामाइन. ये सब क्या है? अल्कोलॉइड्स है. इपेड्रिन, एम्फेटामाइन, टायरामाइन ये सब अल्कोलॉइड्स. Then according to their use, therapeutic use, so vasoconstrictor, adrenaline, noradrenaline, and ephedrine. Vasodilator, isoprenyline, okay, niletrin, and dopamine. According to the receptor stimulation, किसको कौन stimulate करता है? तो अल्फा एगोनिस्ट, एड्रेनलिन, नोराड्रेनलिन. अल्फा 1 एगोनिस्ट, सिलेक्टिव अल्फा 1, फिनिलेफ्रिन, फिनिलेफ्रिन, मिथॉक्सामाइन. अल्फा 2 एगोनिस्ट, क्लोनिडिन, मिथाइलडोपा, एंटी हाइपरटेंसिव होता है. बीटा एगोनिस्ट कौन है? एड्रेनलिन होता है, आइसोप्रेनलिन होता है. बीटा एगोनिस्ट. नॉन सिलेक्टिव. Selective beta 1 agonist noradrenaline dopamine. Selective beta 2 agonist salbutamol terbutaline. Both alpha as well as beta agonist. वो कौन है? Adrenaline. We have already seen. Okay, adrenergic drugs or sympathomimetic drugs. Okay, they are classified into different way. Pressure agent. Pressure agent means they are used to increase the blood pressure. Okay, pressure agent. Okay, noradrenaline. So in case of heart failure or uh, hypotension, हाइपोटेंसिव क्राइसिस, अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया है ना या फिर हार्ट फेलिंग हो रहा है तो उसमें नॉर एड्रेनलिन नोन एज नॉर इपिनेफ्रिन. एड्रेनलिन को अपन और एड्रेनलिन को बोलते हैं अपन इपिनेफ्रिन. इपेड्रिन इज अल्कोलॉइड, डोपामाइन, फिनाइलेफ्रिन, मिथोक्सामाइन, मेपेंट्रामाइन. ठीक है, इसमें आप ट्रिक भी लगा सकते हो, कुछ नाम है ना, नाम भी लगा सकते हो, ऐसा लगा सकते हैं. जैसे मैंने अभी देखा है कोई एमपी 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 डीन डीईएन, एमपी का डीन है, तो कुछ लगा के जोड़ लगा के आप जो भी रखना है रख दो. बेसिकली आई डोंट बिलीव इन द ट्रिक्स. ट्रिक्स में ऊपर नहीं बिलीव आता, कंसेप्ट के ऊपर बिलीव आता. सेकंड क्लास में आपको कार्डियक स्टिमुलेंट, दे आर यूज्ड इन द हार्ट फेलियर. तो किसका, इसका एग्जांपल क्या है? एड्रेनलिन, आइसोप्रेनलिन एंड डोपामाइन. आइसोप्रेनलिन एंड डोपामाइन, एड्रेनलिन, आइसोप्रेनलिन, डोपामाइन. देन ब्रोंकोडायलेटर कौन है? यूज्ड इन द अस्थमा. आइसोप्रेनलिन, सल्बिटमॉल, टर्बिडोलिन, salmeterol, okay, formoterol, then bamboterol. Then next आता है आपका नजल डिकंजेस्टेंट. इसमें जाइलोमिथाजोलिन, जाइलोमिथाजोलिन, ऑक्सीमिथाजोलिन, नेपाजोलिन. बाद में फिनिलेप्रिन, फिनाइलप्रोपोलामाइन एंड सूडोइपिड्रिन और एपिड्रिन सभी. देन सीनियर स्टिमुलेंट में आता है माइंस, एम्फेटामाइन, डेक्सामेथामाइन, पेपेंटामाइन, मिथाइलफेनिडेट. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है मिथाइलफेनिडेट. It is a central stimulant, senior stimulant. GPAT 2023 में है. इसके ऊपर भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है. बाम्बोटेरल, it is a active metabolite of, it is a prodrug of salbutamol. यूट्राइन रिलेशन. नेक्स्ट होता है एनोरेक्सिया. अच्छा, टर्बिटुलाइन मिलेगा, ठीक है, करेक्ट है. यस, बाम्बोटेरल इज अ प्रोड्रग ऑफ टर्बिटुलाइन. मेरे से मिस्टेक हुआ है, सल्बुटामॉल का नहीं है, टर्बिटुलाइन की. बाम्बोटेरल इज अ प्रोड्रग ऑफ टर्बिटुलाइन. सही, टर्बिटुलाइन ये करेक्ट है, सल्बुटामॉल नहीं है उसका. सो बाम्बोटेरल इज अ प्रोड्रग ऑफ दिस टर्बिटुलाइन. तो मेरे से गलती हुआ है, ये सल्बुटामॉल बोल दिया, सल्बुटामॉल नहीं है, टर्बिटुलाइन है. ओके, क्लियर. थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी. ऐसा कुछ करेक्शन होता तो बोलने का फटाफट. कभी कभी क्या होता है, फ्लो में आदमी बोल देता है. नेक्स्ट होता है आपका एनोरेक्टिक. एनोरेक्टिक मींस व्हाट? They will cause appetite suppression. Amphetamine, fenfluramine, dexamphetamine, and sibutramine. These are the anorexiant. So they are used in the obesity. Uterine stimulant or sorry, uterine relaxant. देखो यहाँ पे अगेन 2 टर्म्स होता है. There are 2 terms. First one is known as oxytocin, and second one is known as tocolytic. देखो यहाँ पे 2 टर्म्स होता है. First one is known as oxytocin. Second term is known as tocolytic. So what do you mean by oxytocin? These are the drugs which stimulate the uterine contraction. अगर प्रेग्नेंट यूटरस है उसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने वाले ड्रग है, उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीटोसिन. मतलब दे विल शो एक्शंस लाइक ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. तो ऑक्सीटोसिन के जैसे काम करने वाला ऑक्सीटोसिन. फॉर एग्जांपल आपका जो अल्कोलॉइड्स है, कौन सा ये अपना पहला ही अल्कोलॉइड देखा था आपने, कौन सा? अर्गोट अल्कोलॉइड्स.
So all ergot alkaloids, ergometrin, ergotoxin. So these ergot alkaloids, they are the oxytocic in nature. Ergot alkaloids, oxytocic, they will increase the uterine contraction. Uterine का contraction बढ़ा देंगे and they are used in the delivery to deliver the baby. अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है यूट्रस का तो उसको इंजेक्शन लगा के कॉन्ट्रैक्शन करा दो. टोकोलाइटिक मींस व्हाट? दे आर नोन एज यूट्राइन रिलैक्सेंट. यूट्राइन रिलैक्सेंट मतलब क्या? टोकोलाइटिक. तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे फॉलोइंग ड्रग इज टोकोलाइटिक इन नेचर, तो आपका तो पोपट बन जाएगा ना कि आपको मालूम ही नहीं टोकोलाइटिक क्या होता है. दैट्स व्हाई. मालूम है आपको? यस और नो? माहिती होतं का टोकोलाइटिक? तो टोकोलाइटिक इज नथिंग बट द यूट्राइन रिलैक्सेंट. टोकोलाइटिक मतलब उसका मतलब ही होता है यूट्राइन रिलैक्सेंट. तो एग्जांपल इज रिट्रोड्रिन, आइसोक्सिपिरिन, सल्फेटामोल एंड देन टर्पेटोलाइन. बिकॉज ये क्या है? रिलैक्सेंट्स. Tocolytic. We have seen the classification. Again, we have seen this classification also. Again, I would like to explain you. So, adrenergic drugs क्योंकि 2-3 बार classification क्यों ले रहा हूँ मैं? मुझे बहुत टाइम है क्या? ऐसा नहीं. So, classification बहुत ज़्यादा important है, इसलिए अपन ये 2-3 बार लेते हैं. 2-3 बुक में से लेते हैं. ये सब अलग-अलग बुक में से classification लिया है. Adrenergic drugs, they are classified into different way. So, directly acting drug, indirectly acting drug, and mixed acting drug. डायरेक्टली एक्टिंग मतलब क्या है? डायरेक्टली एक्टिंग मतलब वो डायरेक्टली जो अल्फा बीटा है उसको स्टिमुलेट करेंगे, है ना. सो अल्फा बीटा रेसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे. तो उसमें डायरेक्टली एक्टिंग में कौन होता है? पहले तो एंडोजिनस मतलब कैटेकोलामाइंस जिसमें कैटेकोल न्यूक्लियस है. कैटेकोलामाइंस में भी 2 टाइप का आता है. एक तो होता है एंडोजिनस मतलब क्या? बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो कैटेकोलामाइंस है वो, तो उसमें आएगा डोपामाइन, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन. ये क्या है? एंडोजिनस कैटेकोलामाइंस. एक्सोजिनस मतलब क्या? जो बाहर से अपन सिंथेसाइज करते हैं, तो उसमें क्या है? डोपेटामाइन, डोपेक्सामाइन, देन फेनोल्डोपाम एंड आइसोप्रेनालिन. फेनोल्डोपाम, डोपेक्सामाइन, डोपेटामाइन, ये क्या है? सब डोपामाइन का डेरिवेटिव है. ओके, डोपामाइन का डेरिवेटिव है. कौन है? डोपामाइन का डेरिवेटिव डोपेटामाइन. ठीक है, डोपेक्सामाइन, देन फेनोल्डोपाम, all the are the dopamine derivative. Then isoprenaline, तो ये नॉर एड्रेनालिन का डेरिवेटिव है. आइसोप्रेनालिन सिंथेटिक. ये तो कैटेकोलामाइंस पे. नॉन कैटेकोलामाइंस कौन है? ये वाले जैसे xylomethazolin, clonidine, phenylephrine, salbutamol and methoxamine. So non catecholamines ये क्या है? they they are a different drug but they stimulate the receptor of noradrenaline. और indirectly acting, ये क्या है? डायरेक्टली एक्टिंग क्यों बोलते हैं? ये डायरेक्टली रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, तो डायरेक्टली एक्टिंग. इनडायरेक्टली एक्टिंग क्यों बोलेंगे उसको? इनडायरेक्टली एक्टिंग मतलब ये रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं करने वाला है. ये जो कार्य करता है रिसेप्टर के ऊपर जाके कुछ नहीं करता है. फिर कहाँ करता है? ये क्या करेंगे? ये थोड़ा सा मतलब होता है ना कि कोई लोग होते हैं वो आपको सामने से सपोर्ट नहीं करते, वो बैकग्राउंड में सपोर्ट करते. नहीं तू लड़, मैं हूँ पीछे, और टाइम आने के बाद में निकल जाएंगे, है ना. लड़ने का जब टाइम आएगा तो निकल जाएंगे वैसे, लेकिन ये नहीं निकलते. इनडायरेक्टली एक्टिंग मतलब क्या? सो दे डज नॉट इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर बट दे विल increase the level of endogenous catecholamines by inhibiting the reuptake. So example is cocaine and tricyclic antidepressant. कोकेन क्या है? कोकेन इज नोन एज नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर. तो कोकेन क्या करता है कि न्यूरोनल रीअपटेक जो होता है ना, मैंने बोला था आपको, some neurotransmitter are released, some will act on a post-synaptic receptor, some will be taken back into the neuron by reuptake. There are 2 reuptake, है ना, neuronal reuptake, hormonal reuptake like that. So cocaine increases the cocaine inhibits the reuptake of noradrenaline. Tricyclic antidepressants, they do same thing. अपन ने देखा है ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस में एंटी साइकोटिक ड्रग्स देखा है, उसमें ये डिप्रेशन भी देखा है. डिप्रेशन में एंटी डिप्रेशन ड्रग देखा है. ड्रग एक्टिंग ऑन एंटी साइकोटिक ड्रग का जो रिकॉर्डिंग था वो उस टाइम पे खराब हुआ था. अभी ये जो नेक्स्ट बैच है उसके लिए लूंगा मैं, तो वो रिकॉर्डिंग वहाँ पे अवेलेबल है. तो वो रिकॉर्डिंग बस उतना ही रिकॉर्डिंग नहीं, बाकी सब जितने सेशन हुए आपने उसका सबका रिकॉर्डिंग मैंने डाल दिया. यू कैन चेक द, आपको नोटिफिकेशन भी आता होगा. देन रिएप्टेक इनहिबिटर्स होगा. देन एक्शन बाय डिस्प्लेसमेंट. ये क्या करेंगे? एक्शन बाय डिस्प्लेसमेंट मतलब ये स्टोरेज जहाँ पे होता है वहां से रिलीज कर देंगे. सो एम्फेटामाइन, मिथाइलफेनिडेट,
एंड मोडानापिल मिक्स्ड एक्टिंग। इनको क्या है, दोनों भी एक्शन है, मिक्स्ड एक्टिंग। सो इपिड्रिन, सुडो इपिड्रिन एंड मेपेंटेरामाइन, इपिड्रिन का ही स्टीरियोआइसोमर होता है सुडो इपिड्रिन, ठीक है। इसमें और इसमें सिर्फ देयर इज जस्ट वन चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप। बस इसका स्ट्रक्चर के ऊपर, एक बार क्वेश्चन आया है ना, इपिड्रिन की जीपैट 2022 में क्वेश्चन आ चुका है उसका, स्ट्रक्चर ऑफ इपिड्रिन। और अभी इपिड्रिन के ऊपर ही अभी इस बार भी क्वेश्चन आ चुका है जीपैट 2023, हम देखेंगे उसमें आएगा वो। पेपर पढ़ते जाओ, पेपर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ना। आप बोलेंगे सर आपको कैसे इतना मालूम, पेपर पढ़ना पड़ता है। पेपर मैंने खुद टाइप किया है, किसी को पैसे देके टाइप नहीं करता हूँ। उसका रीजन वही है कि पैसे देके टाइप करूँगा ना तो मुझे कुछ पता नहीं उसका। तो अवेलेबल करवाना अलग बात है कि पेपर जिस दिन हुआ है उसी दिन आपको पेपर अवेलेबल किया है किसी क्लास में, अभी पूछेंगे उनको तो उनको भी मालूम नहीं कि क्वेश्चन आया था जीपीएट में। उसका रीजन वही होता है कि वो क्या करते हैं कि किसी को 200 रुपये देंगे, है ना, जो टाइपिस्ट है उसको बोलेंगे फटाफट टाइप कर देते, वो उसको क्या काम है, वो टाइप कर दे देगा, 200 रुपये मिलेगा उसको। लेकिन जिसने बोला था उसको क्या मालूम कौन सा क्वेश्चन है, जो उसके सामने जो पेपर है उसने जिसने टाइप किया उसको मालूम होगा। तो दैट्स वाई मैं ये खुद टाइप करता हूँ, मैं खुद उसको देख के टाइप करता हूँ। इसकी वजह से मुझे क्या है कि बहुत फटक से याद होता है, ठीक है, और वो पैटर्न भी पता चल जाता है। लेकिन लोग क्या है, सिर्फ पैसा कमाने के पीछे पैसा दे के काम करेंगे, किसी को देंगे पैसा, पैसा देने के लिए मैं भी 220 रुपये दे सकता हूँ, उतना भी बुरा नहीं हूँ। लेकिन मैं देता नहीं हूँ इसलिए क्योंकि ये आपको आपको नहीं समझ में आएगा, जो टाइप करेगा उसको मालूम है ना। वो टाइप करने वाले क्या फार्मेसी के बंदे थोड़ी होते हैं, तो वो टाइपिस्ट होते हैं, उनको लेन देन नहीं, वो सिर्फ जो दिख रहा है उसको फटाक से टाइप। सो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन। तो क्या क्या एक्शंस होंगे, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू व्हाट आर द एक्शंस, आई जस्ट हैव टू रिपीट इट। सो व्हाट इज द एक्शन, ओके। सो एड्रेनालिन इज नॉन सिलेक्टिव अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट। एड्रेनालिन जो होता है वो नॉन सिलेक्टिव होता है, एंड नॉर एड्रेनालिन जो होता है दैट इज अ सिलेक्टिवली अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट। तो नॉर एड्रेनालिन सिलेक्टिव होता है, एड्रेनालिन नॉन सिलेक्टिव होता है। अब बोलेंगे सर नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव इसमें डिफरेंस क्या होगा फिर। so, इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर होता है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 रिसेप्टर होता है। so they are non selective means they will activate all the receptor alpha 1 alpha 2 as well, beta 1 beta 2 beta 3. Noradrenaline is selectively activate either alpha 1 and beta 1, अल्फा 1 बीटा 1 को ही एक्टिवेट करता है, दैट्स व्हाई नॉरएड्रेनालिन इज सेलेक्टिव। नाउ फर्स्ट व्हाट इज द एक्शन ऑफ नॉरएड्रेनालिन ऑन अ हार्ट, ना, दिल, दिल दे दी है जान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए, है ना, वतन के लिए जान दे दो आप, उस वतन के लिए दिल दे दो। तो आप क्या है, कोई छपरी लड़की दिखती है उसके ऊपर दिल दे दो, वो अलग बात है। दिल देना है दे दो ना, कोई बात नहीं, कहाँ पे देना है आपको दिल, दिल देना है आपको वतन के लिए, एज दे आर द, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या एक्शन है उसका, दे आर द बीटा एगोनिस्ट, बीटा एगोनिस्ट है तो क्या करेगा, सो कार्डियक हार्ट रेट क्या करेगा, बढ़ाएगा। सो इंक्रीज द हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कंट्रक्शन एंड कंडक्शन वेलोसिटी, पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट एंड पॉजिटिव ब्रोमोट्रोपिक इफेक्ट, ओके। सो इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन इन द मायोकार्डियम, तो ये उसका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ा देगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉरएड्रेनालिन ऑन द ब्लड वेसल्स एंड ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल के ऊपर क्या एक्शन है और उसका रिजल्ट होता है ब्लड प्रेशर के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या एक्शन। तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल ड्यू टू अल्फा रिसेप्टर, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल of the skin and mucous membrane, both adrenaline and noradrenaline, but adrenaline dilates the blood vessels of skeletal muscle, है ना। तो एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन जो पेरिफेरल ब्लड वेसल है उसको कंस्ट्रिक्ट करेंगे स्किन में पेरिफेरली, बट जो स्केलेटल ब्लड वेसल है उसको डायलेट करेंगे। So adrenaline increases the systolic blood pressure by its cardiac action, but decreases the diastolic blood pressure by peripheral action. Adrenaline क्या है, अल्फा 2 को भी स्टिमुलेट करता है। एड्रेनालिन का बायोफिजिक रिस्पॉन्स होता है ब्लड प्रेशर पे। सो बाय एक्टिंग ऑन अल्फा 1 रिसेप्टर it increases the peripheral resistance and blood pressure, but by acting on a beta 2 alpha 2 receptor it decreases the peripheral uh, resistance. So it has a biophysic response. Initially it stimulates the blood pressure adrenaline, and later on it decreases the blood pressure. So that's why adrenaline is a non-specific in action. That's why non-selective बोला है इसको। That's why it is not stable in the hypotensive shock. अगर hypotension हो गया तो इसमें
सुटेबल नहीं है. कौन? एड्रेनालिन. बट नॉरएड्रेनालिन है. So you have to understand the difference. So adrenaline is a non-selective action. So adrenaline is a non-selective action. It has a non-selective action, and that's why it initially increases the blood pressure, but later on it decreases the blood pressure. That's why it is not suitable in the hypotensive shock. Then who is suitable? So here noradrenaline and dopamine. Here noradrenaline and dopamine, they are the suitable for hypotensive shock. इसमें dopamine noradrenaline ये suitable होता है. Now what is Dell's vasomotor reversal? तो ये भी किसी ने आपको बोला नहीं होगा. तो ये भी वही काम है ना अपना. Dell's vasomotor reversal. Okay. So Dell's मतलब क्या? Dell's का. क्यों बोलेंगे Dell's का? क्योंकि उसने उसका so he has founded the this vasomotor reversal. That's why it is known as the Dell's vasomotor. So there was a scientist known as Henry Dell, Sir Henry Dell. Okay, Henry Dell. So by stimulating the alpha receptor, adrenaline produces the increase in the blood pressure initially. But however, the action on a beta receptor is more persistent and therefore finally it results in the decrease in the blood pressure. Initially ये क्या करता है? Blood pressure increase करता है by acting on a alpha receptor. But as far as adrenaline is concerned, its action on a beta receptor is more persistent. वो dominate करता है. That's why later on it decreases the blood pressure. Now this is a biphasic response. So this adrenaline has a biphasic response on the blood pressure. Now this response, okay, this biphasic response was noted by Sir Henry Dell, and Sir Henry Dell noted that this biphasic response is converted into depressor response by prior administration of ergot extract. तो ergot extract मतलब क्या? Ergot alkaloids. वो क्या है? They are nothing but the alpha blocker. वो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे. तो इनिशियली जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने वाला था एड्रेनालिन, वो तो रिसेप्टर ब्लॉक हो चुका है, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन बीटा रिसेप्टर के ऊपर जाके वो एक्ट होगा और डिक्रीज करेगा. तो देयर इज नोन एज ओके. सो दैट इज अ डिप्रेसर रिस्पांस. एड्रेनालिन वैसे भी क्या करता है कि इनिशियली ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, बाद में डिक्रीज करता है बाय बेसिकली. और अगर आपने प्रायोर अर्गोट ऑर्कुलाइड्स देख रखा है, तो अर्गोट ऑर्कुलाइड्स क्या करेंगे? अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे. अच्छा बीटा, एड्रेनालिन बीटा पे जाके एक्ट होगा, ब्लड प्रेशर कम करेगा. बीटा वन नहीं, बीटा 2 ब्लड प्रेशर कम करेगा. बिकॉज ऑफ द अल्फा ब्लॉकेज देयर इज अ मोर डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज Dell's vasomotor reversal. It is known as a Dell's vasomotor reversal. Dell's vasomotor reversal. पढ़ाया है ये कॉलेज में? ये पढ़ाया है क्या? तो क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है आपको, Dell's vasomotor reversal. क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. So in the Dell's okay, so Dell's vasomotor reversal is observed when following drug is given prior to the adrenaline. और उसका आंसर था आपका ये अर्गोट अल्कलॉइड्स. इसमें एग्जांपल देंगे आपको अर्गोटामाइन है ना, अर्गोटोक्सिन वगैरह, अर्गोमेट्रिन. ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार आ चुका है. ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे आप. अभी याद साल याद नहीं मुझे कि क्या क्या याद रखूंगा. Both adrenaline and noradrenaline reduces the renal blood flow. ये किडनी का ब्लड फ्लो कम करता है. Adrenaline and noradrenaline, they will decrease the blood flow to the kidney, and that's why they will decrease the urine formation. That's why they decrease the urine formation and excretion of urine, as well as excretion of sodium, potassium chloride. यूरिन ही एक्सक्रीट नहीं हो रहा है तो पोटेशियम सोडियम कहाँ से आएगा उसमें? Both adrenaline and noradrenaline constrict the hepatic and mesenteric blood vessel and increases the portal venous pressure. मेसेंट्री मतलब क्या? आपके जीआईटी के नजदीक की ब्लड वेसल्स. तो लीवर का ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करेगा, मेसेंट्रिक ब्लड वेसल भी कंस्ट्रिक्ट करेगा, ताकि कम ब्लड वहां पे जाए. ब्लड कम जाएगा मतलब ब्लड प्रेशर वहां पे कम रहेगा. क्यों? क्योंकि आप भाग रहे हो, आपके सामने टाइगर है, तो आपको डाइजेशन करके क्या फायदा है? लीवर में है ना. एड्रेनालिन इंक्रीजेस द सेरेब्रल ब्लड फ्लो, तो आपकी खोपड़ी में ब्लड फ्लो बढ़ा देगा, एंड इंक्रीजेस द ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ योर ब्रेन. एंड adrenaline increases the risk of stroke due to its increased cerebral blood flow and its antiplatelet action.
सीनेस में क्या है, कैटेकोलामाइंस डू नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, कैटेकोलम मना कर देंगे, सो इट कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो आप बोलेंगे सर ये नॉरएड्रेनालिन होता कहाँ पे, क्योंकि ये तो वहीं पे बनता है ना बॉस। सो इट इज, दे आर सिंथेसाइज्ड लोकली, दे आर स्टोर्ड एंड दे आर रिलीज लोकली इन द सिनेप्स, इन द न्यूरॉन, तो वहीं पे ही बन रहा है, जो बाहर से देंगे वो वहां तक नहीं। कैटेकोलामाइंस डू नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, दैट्स व्हाई दे हैव लिमिटेड सीनेस एक्शन। Adrenaline may produce excitement, tremors, stupor, vomiting and restlessness. अगर एड्रेनलिन लेंगे तो वो कभी ये सीनेस के सिम्टम्स दिखाता है। What is the action of adrenaline, noradrenaline on the smooth muscles? स्मूथ मसल के ऊपर क्या है, पहले देखो ब्रोंका है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। इट इज अ पोटेंट रिलैक्सेंट ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल ड्यू टू बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिज्म। स्पेलिंग मिस्टेक है, पोटेंट इन यूटरस, करेक्ट किया है मैंने ऑलरेडी बुक में, यूटरस। सो नॉन ह्यूमन, ओके, नॉन प्रेग्नेंट ह्यूमन यूटरस, अगर नॉन प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी नहीं है, so that uterus is contracted by noradrenaline and adrenaline, but in the last month of pregnancy, अगर pregnancy है तो adrenaline inhibit the uterine contraction and causes the uterine relaxation। तो empty uterus है, uterus में कुछ नहीं है, बच्चा वगैरह नहीं है, तो contraction करेगा, और बच्चा है तो relaxation करेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो देखो मैंने इसके इसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि there is a relaxation of smooth muscle of GIT and constriction of your sphincters. So what happens? That is the inhibition of peristalsis and decrease in the other smooth muscles. Adrenaline constrict the pilometer muscle, and so that causes the hair straightening, retention of urine because of the relaxation of detrusor muscle and constriction of trigone. That's why urine retention. स्पिंकल के ऊपर होता है अल्फा रिसेप्टर और डेट्रोसर मसल के ऊपर होता है बीटा रिसेप्टर। इसलिए अपन ने रिसेप्टर देख लिया, जिस टाइम पे रिसेप्टर देख लिया उसी टाइम पे एक्शन समझ में आ गया। दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर द रिसेप्टर, देयर एक्शन नेचर। देन एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, ओके, प्रिंसिपली कंस्ट्रिक्ट द स्प्लेनिक कैप्सूल, रिलीजेस द इरिथ्रोसाइट्स इनटू द सर्कुलेशन। आप जब भाग रहे हो, आप जब भाग रहे हो, आप जब फाइट कर रहे हो, तो आपके ऑक्सीजन तो चाहिए ना बॉडी में, तो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करने के लिए ज़्यादा आरबीसी चाहिए। ज़्यादा आरबीसी कहाँ से होगा, आरबीसी का स्टोरेज हाउस क्या होता है, स्प्लीन। दैट्स व्हाई एड्रेनालिन और एड्रेनालिन causes contraction of your splenic capsule, releases the erythrocytes in the peripheral circulation. Are you getting or not? समझ रहे हैं आपको? What is the effect of adrenaline or adrenaline on eyes? Mydriasis. So mydriasis means क्या? Increase in the pupil size due to contraction of radial muscle, okay, and due to mydriasis, okay, due to contraction of radial muscles, ये mydriasis करता है, circular muscles, okay? इन रेस्पिरेशन के ऊपर क्या एक्शन है, इट इज अ ब्रोंकोडायलेटर एंड इट हैज अ वीक स्टिमुलेंट एक्शन, मतलब इट इज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, वीक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। एड्रेनालिन इन द एरोजोल फॉर्मुलेशन constrict the pulmonary blood vessel and release the bronchial congestion, है ना। तो एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा में भी दे सकते हैं। मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या है, मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या करता है। एड्रेनालिन इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल बाय एनहांसिंग द हेपेटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि आपको काम भागना है, लड़ना है, तो शुगर लगेगा ना, ओके। एंड डिक्रीजिंग द पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक, इंक्रीजिंग द blood lactate, increase in the plasma free fatty acid. So adrenaline causes increase in the blood lactate level, increase in the plasma free fatty acid because of the lipolysis। बीटा 3 रिसेप्टर के ऊपर जाके आपको क्या करेगा, लिपोलाइसिस करेगा, हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम का लेवल बढ़ा देगा बिकॉज ऑफ द प्रोमोटिंग द सेलुलर अपटेक ऑफ पोटेशियम। और स्केलेटल मसल के ऊपर क्या है, मैंने बोला है, इट कॉजेज द स्केलेटल ब्लड वेसल dilation, so constriction by both alpha increases the amount of ACH at a neuromuscular junction। ये स्केलेटल मसल है, नॉट अ ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल नहीं है। स्केलेटल मसल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल होगा, देयर इज एन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। एंटी एलर्जिक एंड मिसलेनियस एक्शन, सो adrenaline has an anti-allergic action, it is the drug of choice in the anaphylaxis, it prevents the release of allergic mediators। और एनाफिलैक्सिस में क्या होता है, there is a release of histamine, है ना, bradykinin,
Histamine, serotonin, bradykinin, adrenaline prevent the release of these allergic mediators. So reduction and decrease in the viscous secretion. So bronchial में secretion कम करेगा. Example salivary gland में bronchial में secretion कम करेगा ताकि आपका जो bronchi है वो भर ना जाए. So that's why it is used in the anaphylaxis. Drug of choice क्या है? Absorption, distribution, metabolism, elimination. They are not given orally because they are rapidly destroyed in the GIT and liver. They are metabolized by two enzymes, catecholamine orthometal transferase, which is extracellular enzyme, and MAO enzyme, it is a monoamine oxidase. So it is present in the adrenergic neuron inside the mitochondria. They are sequentially metabolized. We have seen the metabolism. So 3-methoxy-4-hydroxymandelic acid, then metanephrine. Metanephrine मतलब metanephrine. Nor-meta-adrenaline मतलब normethanephrine. They are the product of adrenaline and noradrenaline. Principal product क्या है? Vanillyl mandelic acid. वो ही क्या रखना है? यहाँ पे नहीं, ऊपर लिखा है vanillyl mandelic acid VMA. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एक बार. Principal metabolic product of noradrenaline. That's vanillyl mandelic acid. Adverse reaction क्या है इसके? These are the because of the extension of pharmacological response. So ये क्या है? ये कोई बाहर से थोड़ी ड्रग दे रहे हैं आप. अगर दे भी रहे हैं बाहर से एड्रेनलिन तो आपकी बॉडी में भी एड्रेनलिन होता है, नॉर एड्रेनलिन होता है. सो व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट? दे आर बिकॉज ऑफ द जस्ट एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी. सो एक्शन क्या है? टाइप 1 एडीआर. टाइप 1 एडीआर एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब है टाइप 1 एडीआर. ओके, सो इट कॉजेज द palpitation, throbbing headache, tremors, subarachnoid hemorrhage. मतलब ये स्ट्रोक भी करता है कभी, स्ट्रोक बेटा देगा आपको. Paralysis pattern, stroke occasionally. Adrenaline can precipitate the pulmonary edema. Pulmonary edema. These are the adverse effects. देखो uses क्या है इनके adrenaline noradrenaline के? Therapeutic uses of adrenaline noradrenaline. So anaphylaxis. So adrenaline is a drug of choice in the anaphylactic shock. बोलो तो आएगा. Then bronchial asthma. So adrenaline is a potent bronchodilator. So used in the bronchial asthma. कार्डियोपल्मोनरी रिसुसाइटेशन मतलब अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इसमें भी कार्डियोपल्मोनरी रिसुसाइटेशन. कंट्रोल ऑफ हीमोरेज, ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो उसमें लोकली है, मैंने जो बोला लोकली, लोकल इज स्टिप्टिक एंड इज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर अलॉन्ग विद द लोकल एनेस्थेटिक. लोकल एनेस्थेटिक के साथ में एड्रेनलिन को कंबाइन किया जाता है ताकि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लोकल एनेस्थेटिक का बढ़ सके. क्यों? क्योंकि ये क्या है? वैसोकंस्ट्रिक्टर. So as adrenaline, noradrenaline, they are vasoconstrictor. Noradrenaline तो उसको यूज नहीं करते, लेकिन adrenaline is combined with the this local anesthetic because of its vasopressor action. So there is a vasoconstriction and there is a increased duration of your local anesthetic, okay? And decreased toxicity of local anesthetic. Noradrenaline is mostly used to increase the blood pressure in the shock. Noradrenaline is used to elevate the blood pressure in the shock. These are the therapeutic uses of this drug. Now, देखते हैं कौन से. Next one is isoprenaline. So isoprenaline, it is a synthetic one and it is the most potent synthetic non-selective beta agonist. Line as it is आपको याद रखना है. Most potent synthetic non-selective beta agonist. Isoprenaline. किस में यूज करेंगे भाई इसका? इसका यूज होगा हार्ट फेलियर में and asthma में. So pharmacology is stimulate the heart and causes the tachycardia. It lowers the peripheral vascular resistance. It relaxes the smooth muscles of bronchi and GIT. It is a calorogenic, calorie भी देता है and releases the free fatty acid. So उतने दो चार लाइन ही important है, बाकी ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं. यूजेस क्या है? यूजेस है इसका स्टोक एडम सिंड्रोम. स्ट्रोक नहीं है, ये आर नहीं है, स्टोक्स एडम सिंड्रोम, स्टोक्स एडम सिंड्रोम. ये होता क्या है? स्टोक्स एडम सिंड्रोम. स्टोक्स एडम सिंड्रोम होता क्या है? स्टोक्स एडम सिंड्रोम इज देयर इज अ जनरलाइज्ड decrease in the heart rate, blood pressure. Basically, there is a decreased activity of heart, decreased cardiac output, है ना, due to different reason. कार्डियक आउटपुट कम हो गया, हार्ट रेट कम हो गया, वासोपोटेंशियल कम हो गया, तो उसको बोलेंगे स्टोक्स एडम सिंड्रोम. सो आइसोप्रेनालिन इज यूज्ड इन द स्टोक्स एडम सिंड्रोम.
because of the less liability to produce less cardiac arrhythmia. ये cardiac arrhythmia कम करता है over adrenaline. It is also used in the shock due to beta blockers. अगर बीटा ब्लॉकर्स की वजह से शॉक हुआ है, कार्डियोजेनिक शॉक, बहुत ज़्यादा बीटा ब्लॉकर्स यूज करेंगे तो कार्डियोजेनिक शॉक आपको हो सकता है. तो इट इज यूज्ड इन द शॉक ड्यू टू बीटा ब्लॉकर्स. आइसोप्रेनल. नेक्स्ट होता है डोपामाइन. कौन सा माइन? डोपामाइन. इट इज अ नेचुरल प्रिकर्सर फॉर नॉरएड्रेनालिन. आपने देखा है कि नॉरएड्रेनालिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम dopamine itself, where dopa decarboxylase enzyme will remove the carboxyl group and it will convert into noradrenaline. So it acts on a different dopaminergic receptor. तो डोपामाइन किसके रिसेप्टर के ऊपर एक्ट होता है? उसके खुद के रिसेप्टर है भाई, लाइक D1, D1, D1 एंड D5 ये दोनों सिमिलर होते हैं. देन D2, 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 D3, D4 ये सिमिलर होते हैं. तो D1, D2, D3, D4, D5. These are the 5 receptors for dopamine, and out of that D1, D2 they are having similar activity. D2, D3, D4 they are having similar activity. It is metabolized by same enzymes like COMT and MAO, but particularly MAO-P. Adverse reaction क्या है इसके? Nausea, vomiting, palpitation, ectopic beats. Ectopic beats मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि नॉर्मल हार्ट रेट जो है आपका कितना होता है? 72 बीट्स पर मिनट है ना, ऑन एन एवरेज. मतलब 72 बीट्स ही होना चाहिए ऐसा नहीं, बट 71, 72, 73 ये इनके बीच में होगा तो चलेगा. सो बट ectopic beats means what? So your heart has a one SA node, so which has the highest electrical activity. वो क्या करता है? इम्पल्स जनरेट करता है और ट्रांसमिट करता है. The number of impulse generated per minute is nothing but around 70, 72, 72, 70 से लेके 72 इम्पल्स जनरेट होते हैं, उसके ऊपर 72, 70 बीट्स बनते हैं. एज होल मायोकार्डियम, आपका हार्ट का मायोकार्डियम जो होता है, सो ऑल मायोकार्डियल सेल हैज अ पोटेंशियल, दे हैव अ टेंडेंसी, दे कैन जनरेट अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. अगर बट मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेशन इज एट अ इस नोड. ठीक है, बट अगर बाकी सेल को भी लगने लगा कि अपन निज भगवान है, भगवान को नहीं हार्ट का इसे नोड, बाकी सेल भी कभी कभी उनको भी जोश नहीं आता है. बाकी मायोकार्डियल सेल को जोश आता है, वो बोलते हैं अपन भी भगवान है, फिर वो चालू करता है बीट बनाना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाता है. सो दैट कॉजेज द एक्स्ट्रा बीट, एंड बिकॉज ऑफ दिस ectopic beats, सो देयर इज डेवलपमेंट ऑफ एरिथमिया. अरिथमिया जो होता है वो बिकॉज ऑफ द ectopic beats होता है. When we'll see antiarrhythmic drug, at that time I will explain. Then sudden increase in the blood pressure. So therapeutically it is used to treat the shocks. कौन सा shock? Cardiogenic shock and threaten acute renal failure. So drug of choice in the cardiogenic shock, it is a dopamine. Drug of choice in the cardiogenic shock कौन सा माइन? Dopamine. Next होता है phenodipam. Phenodipam क्या है? ये डेरिवेटिव है किसका? डोपामाइन का. क्या है? It is a D1 receptor agonist used in the hypertensive crisis. Dopamine, structurally similar to dopamine, but selective beta 1 receptor agonist with a permanent effect on a cardiac contractility. Dopamine. It has negligible chronotropic and peripheral vascular action. Then होता है dopexamine. So another inotropic action increases the force of contraction in the heart and related with the cardiac surgery. तो डोपेक्सामाइन कब यूज करेंगे? कार्डियक सर्जरी हो गया तो उसमें अगर हार्ट का कंट्रैक्शन कम हो गया तो डोपेक्सामाइन यूज करेंगे. इट स्टिमुलेट द कार्डियक डोपामाइन एंड पेरिफेरल बीटा 2 रिसेप्टर्स. नेक्स्ट आता है आपका नॉन कैटेकोलामाइंस. नॉन कैटेकोलामाइंस, नॉन कैटेकोलामाइंस में क्या आएंगे? अल्कोलॉइड्स आएंगे. अल्कोलॉइड्स. नॉन कैटेकोलामाइंस, सिम्पैथोमिमेटिक अमाइंस, सिम्पैथोमिमेटिक अमाइंस विदाउट कैटेकोल न्यूक्लियस. इसमें कैटेकोल न्यूक्लियस नहीं है, इससे अमाइंस. तो एग्जांपल रहेगा उसका इपेड्रिन, एम्फेटामाइन एंड अदर वैसोप्रेसर्स. उनका मैकेनिज्म क्या है भाई? सो दिस ड्रग रिलीजेस द नॉरएड्रेनालिन डोपामाइन फ्रॉम द सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स. दैट्स व्हाई दे आर इनडायरेक्ट एक्टिंग. डायरेक्ट एक्टिंग क्यों नहीं भाई? ये कि ये ना ही किसके नॉरएड्रेनालिन के रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, नहीं करते. ये क्या करते हैं? फिर उसका रिलीज बढ़ा देते हैं. They are indirect acting. So they increase the release of noradrenaline from sympathetic nerve ending. Second, amphetamine and epinephrine also
inhibit the reuptake of noradrenaline 5-HT and dopamine. तो इनका reuptake भी inhibit करते हैं. थर्ड क्या करते हैं? They act as a partial agonist to the noradrenaline. That's why they are known as a mixed acting also. Mixed acting क्यों है? कि उनका acting जो है वो specific नहीं है. वो ना ही किसी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं पर्टिकुलर सिलेक्टिव है या नहीं, वो रिलीज इंक्रीज करते हैं. दूसरा क्या करते हैं? उसका रीअपटेक इनहिबिट करते हैं. पहला ड्रग आता है भाई इपेड्रिन. कहाँ से आता है? इपेट्रा जेरार्डिया. इपेड्रेसी. ये कौन सा स्टोमेटा होता है? समुकन टाइप ऑफ स्टोमेटा, कोकनस में चार्ज. इपेड्रेसी और जेंटियासी फैमिली होता है उसका. सो इट स्टिमुलेट बोथ अल्फा एज वेल एज बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड रिलीजेस नॉरएड्रेनालिन. Releases the noradrenaline from sympathetic nerve ending. Pharmacological actions है ऐसे. On the cardiovascular system, it increases the force of contraction, increases the peripheral vasoconstriction and cardiac output. But ये इपिड्रिन जो होता है ना, इसको टॉलरेंस जो है ना वो बहुत ही जल्दी होता है. So there is a development of rapid tolerance. तो कोई मुझे बताएगा कि rapid tolerance को क्या बोलते हैं अपन? So rapid tolerance is also known as, yes, anybody? Hello? Are you able to hear me properly? So rapid tolerance is also known as, हाँ तो ये भी दिया है ना, दिखते थे जो tachyphylaxis. Tachyphylaxis means rapid tolerance. Tolerance developed to a drug within a single dose. So tell me the another drug which show the tachyphylaxis. एक तो होगा इपेड्रिन, दूसरा एक तो होगा इपेड्रिन, दूसरा डायरामाइन हो गया, तीसरा होता है आपका एम्फेटामाइन. ऐसे ड्रग्स. So these are known as a tachyphylaxis. Tachyphylaxis means rapid tolerance. So tolerance in, normally what happens, to develop tolerance to a drug, to develop a tolerance to a drug, it takes a time. है ना, जैसे आपने मॉर्फिन ले लिया, मॉर्फिन आज ले लिया 1 मिलीग्राम, कल ले लिया, परसों ले लिया, एक 8-10 दिन आपने ले लिया मॉर्फिन, तो आपको थोड़ा सा टॉलरेंस डेवलप हो जाएगा. आपने आज एक पैक मार लिया, दोस्त ने क्या बोला, चल मैं पिलाता हूँ, अब गए, पॉकेट में मिल रहा है तो चलो इसे पॉकेट में, यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, पॉकेट में कचरा मिलता है, पॉकेट में नोट्स मिलते हैं, आपको लगता है अरे वाह चलो, लेकिन जाने के बाद पता चलता है कि इसमें अपना है नुकसान. वैसे आपके एक दरिंदा दोस्त ने आपको बोला पिलाता हूँ मैं, आपने एक पैक पी लिया, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं, नॉर्मली करता है. दूसरे 2-4 दिन में गए आप पार्टी को, फिर से एक पैक, लेकिन 4-5 दिन के बाद में आपको क्या होता है, एक पैक से कुछ नहीं होता, 2 पैक होते हैं. मतलब टॉलरेंस डेवलप होता है, ठीक है, बट वो टाइम लगता है उसको. To develop a tolerance to alcohol, it will take time. Say for example, 1 month, 2 months. Okay, but some drugs are there, they can develop tolerance in a quick time, in a short time. Known as a rapid tolerance, known as tachyphylaxis. Tachyphylaxis के ऊपर 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है. स्मूथ मसल्स, तो अगेन अभी देखो इनका एक्शन समझने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं आपको. ये क्या है, सिम्पैथोमाइमेटिक है, तो कौन सा एक्शन दिखाएगा भाई, जो नॉरएड्रेनालिन का एक्शन है वही तो एक्शन करेगा. सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग का एक्शन कौन सा रहेगा, अलग थोड़ी रहेगा, है ना, वही रहेगा ना, वो जो नॉरएड्रेनालिन का एक्शन है वही तो उसका एक्शन है, वही सेम थिंग. मसल वे और क्या, रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल मसल, तो नॉरएड्रेनालिन क्या करता है भाई, वही तो करता है ना, यूट्राइन स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन करता है, वही तो करता है. एनहांसेस द टोन ऑफ ट्राइगोन एंड स्फिंक्टर ऑफ ब्लैडर, वही यूरिन रिटेंशन. सीएनएस के ऊपर क्या है, बाय एक्टिवेटिंग द रेटिकुलर सिस्टम स्टिमुलेट द सीएनएस, can produce restlessness, insomnia and tremors, increase the mental activity. वही तो एडवर्स इफेक्ट होता है एड्रेनालिन और एड्रेनालिन. आइस के ऊपर क्या है, माइड्रेसिस, उसका इफेक्ट वही है. मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या है, इंक्रीज इन द मेटाबॉलिक रेट एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन. एड्रेनालिन का भी वही है. एडवर्स इफेक्ट क्या है, जीआई अपसेट मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, इंसोम्निया मतलब नींद ना आना. इंसोम्निया के लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या है, सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग यूज करते हैं. ट्रीमर्स, रेयरली साइकोटिक सिम्टम्स एंड लास्टली हेलुसिनेशंस. ये सब क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ इपेड्रिन. आप बोलेंगे सर आपने इपेड्रिन तो पढ़ा दिया है, इपेड्रिन नहीं पढ़ा है. वो क्या है भाई, उसका ही छोटा भाई है ना, उसका ही पिल्लू है वो. तो इपेड्रिन का ही आइसोमर क्या है, इपेड्रिन. उसके भी एक्शन उतने होंगे. थेरेपेटिक यूजेस, उसका यूज क्या है भाई, ब्रोंकियल अस्थमा, देन नजल डिकंजेशन, हाइपरटेंशन, Stokes-Adams syndrome. It is a mydriatic. It is used in the treatment of narcolepsy. Narcolepsy मतलब क्या होता है भाई, narcolepsy मतलब क्या होता है, anybody बोला है ऑलरेडी आपको, लेकिन आप एज अ स्टूडेंट आप ध्यान नहीं दिए, यही मुझे चीज बोलो.
कि यार आपको ऐसे ऐसे टर्म्स वगैरह सबका मैं बोलता हूँ, आप ध्यान में रखें। नार्कोलेप्सी मतलब क्या होता है? डे टाइम सेडेशन, दिन में भी नींद आना, नार्कोलेप्सी। कभी भी सो जाता है वो, है ना। एक एक मूवी है देखो साउथ का, उसमें एक उसका एक्टर का नाम है विशाल। तो उसको नार्कोलेप्सी होता है, जैसे ही कोई बड़ा साउंड सुनता है, जैसे ही थोड़ा सा उसको स्ट्रेस आता है, वो सो जाता है, उसको नार्कोलेप्सी होता है। तो नार्कोलेप्सी में सीनियर स्टिमुलेंट यूज करते हैं। ये क्या है? बेटरीन सीनियर स्टिमुलेंट है। ओपिंग कप, ओपिंग कप मतलब डांग्या खोखला। ये देखो डांग्या खोखला, मराठी में तेलुगु में डांग्या खोखला, ओपिंग कप। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है मालूम है आपको? इरिथ्रोमाइसिन इज एंटीबायोटिक, ड्रग ऑफ चॉइस ओपिंग कप। Then urinary incontinence, nocturnal enuresis, and also used in the uterine carrier. Pseudoepiedine क्या है? इसका stereoisomer of epiedine used as a nasal decongestant. There is a least cardiovascular side effect. अपन आज के दिन के लिए इतना ही कीर्तन ओके, बाकी कीर्तन अपन कल देखेंगे। Are you able to? Are you getting or not?